हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अज असी नैक्सट टॉपिक करना है अपना न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स आर द omnivores in nutrition like other multicellular animals. Humans have a digestive system for the nutrition. The digestive system is a group of organ and associated digestive glands that take part in ingestion of food, its crushing, digestion, absorption of digestive material and digestion of intestinal matter। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੈਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਔਰਗਨਸ ਫੋਰਮਸ ਏ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੈਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਆ। It contains a number of digestive glands of its own. 3 types of the external glands also pour their secretion into alimentary glands. They are salivary gland, liver, pancreas। बहुत सारियां साडी बॉडी ਵਿੱਚ ਗਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਲਾਈਵਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਲਾਈਵਾ ਵਗੈਰਾ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਲਿਵਰ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਇੰਸੂਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਟਿਊਬੂਲਰ ਪੈਸੇਜ ਐਕਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮਾਊਥ ਟੂ ਐਨਸ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਨਸ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਥ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ 9 ਮੀਟਰ ਇਨ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਥ, ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ, ਓਸੋਫੈਗਸ, ਸਟਮਕ, ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਐਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਊਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਊਥ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਲਿਟ ਆ ਲਾਈਕ ਅਪਰਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੋਜ਼ ਅਤੇ ਚਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਮੂਵੇਬਲ ਲਿਪਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਲਸੋ ਏਡ ਇਨ ਅ ਫੋਨੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਟੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਨੈਕਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਔਰ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦਾ, ਡੈਟ ਐਕਸਟੈਂਡਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਊਥ ਟੂ ਦਾ ਫੈਰਨੈਕਸ ਐਂਡ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ 2 jaws, ਅਪਰ ਫਿਕਸਡ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਮੂਵੇਬਲ। ਸਾਡੇ 2 jaw ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪਰ ਜਿਹੜਾ jaw ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਪੈਲੇਟ ਔਨ ਅਪਰ ਸਾਈਡ, ਥਰੋਟ ਐਂਡ ਟੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਊਥ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਲੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੀਕਸ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਾ ਜੌਸ ਕੰਟੇਨ ਤੀਥ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੰਗ ਇੱਕ ਮਸਕੂਲਰ ਸੈਂਸਰੀ ਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਟਰੂਸਿਬਲ ਫਲੈਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟੀਰਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਅਰ ਜਾਅ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਟੇਸਟ ਬਡਸ। ਟੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਟੇਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਲਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਟ ਮੂਵਸ ਫੂਡ ਇਨ ਦਾ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਫॉर ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਅੰਡਰ ਟੀਥ ਮਿਕਸਡ ਵਿਦ ਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਐਂਡ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ ਇਨਟੂ ਸਵਾਲਿੰਗ। ਔਰ ਟੰਗ ਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੀਥ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਟੰਗਸ, ਔਰ ਸਪੀਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੀਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਰਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਟਿੰਗ, ਚੂਇੰਗ, ਕ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਐਮਬੈਡਡ ਇਨ ਸੌਕਟਸ ਆਫ ਜਾਮਨ।
ठीक है। टीथ आर मेड ऑफ आइवरी लाइक सबसटांस कॉल्ड डेंटाइन। टीथ काहदे बने होंदे आ? डेंटाइन दे। एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टीथ और क्रोन्स आर कवर्ड बाय शाइनिंग सबसटांस अनैमल। और जिहड़ा सानू बाहरला पार्ट होंदा टीथ दा वाइट कलर दा, साडे उन्हां नूं की बोलदे आ? अनैमल बोलदे आ। अनैमल एक हार्डेस्ट सबसटांस आ साडी बॉडी दा। ठीक है। हरेक जॉ दे विच 16 टीथ प्रैजेंट होंदे आ। ठीक है। 4 टाइप्स के टीथ प्रैजेंट होंदे आ साडी बॉडी दे विच, ये तुसीं देख सकदे हो टेबल। सो इंसीजर्स, कैनाइनस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੀਜਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਚੀਜ਼ਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਈਚ ਜੌ ਦੇ ਵਿੱਚ? 4 ਥੱਲੇ 4 ਉੱਪਰ, 8 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਗਰ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਟੇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੇਰਿੰਗ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰਸ ਕਸਪ ਬਰੋਡ ਐਜਡ ਹੁੰਦੇ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ 4 ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8 4 12 12 8 20 20 ਦੇ 6 ਥੱਲੇ ਦੇ 32 ਹੋ ਗਏ। ਮੋਲਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ 6 ਥੱਲੇ 6 ਹੋ ਗਏ, 12 ਟੋਟਲ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਈਚ ਜੌ ਦੱਸਿਆ, ਈਚ ਜੌ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8। ਜੇ 2 ਆ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 4 ਆ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8 ਆ ਗਏ 12। ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 32। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ 30 ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ 3 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਪੈਰੋਟਿਡ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਈਅਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਲੈਂਡਸ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਟਿਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਜਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਮੈਗਜ਼ਿਲਰੀ, ਔਰ ਬਿਲੋ ਸਾਡੇ ਟੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬ ਲਿੰਗੁਅਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਸਲਾਈਵਾ ਇਜ਼ ਪੋਰਡ ਇਨਟੂ ਬੱਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਸਲਾਈਵਾ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮਿਊਕਸ, ਵਾਟਰ, ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ਾਈਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪਟਾਇਲਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸੋਫਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਿਊਕਸ, ਵਾਟਰ, ਸਲਾਈਵਾ ਮੇਕਸ ਦਾ ਫੂਡ ਸੋਫਟ, slippery for easy crushing, formation of bolus and protection of soft lining element. Watering of the mouth at the site of delicious dish or during eating favorite dishes due to excessive secretion. ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ਾਈਮ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਅਗਰ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਡਾਈਜੈਸਟ ਮੇਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਲਾਈਵਰੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫੂਡ ਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਟੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਨੇ? ਮਾਲਟੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਲਾਈਵਾ ਕਲੀਨਸ ਦਾ teeth, provides solvent for dissolving chemical present in food, keeps the buccal cavity, leaves them moist for proper phonation. Next ਹੈ ਦਾ ਡੈਂਟਲ ਕੇਰੀਜ਼। ਡੈਂਟਲ ਕੇਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ softening and destruction of an enamel, outer shining, hardest covering, dentine, inner bone-like covering of teeth, forming cavities that reach above. ਡੈਂਟਲ ਕੇਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾ ਡੈਂਟਲ ਡਿਕੇ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਡੈਂਟਲ ਡਿਕੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਪਟੋਕੋਕਸ ਮਿਊਟੈਂਟਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਫੀਡਸ ਔਨ ਦਾ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੂਗਰਸ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਸਿਡਸ। The acids are able to demineralize enamel and dentine so as to soften the same. Growing on the food particles, streptomutans multiply rapidly and form. ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਲਿਸ਼ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ ਡੈਬਰੀਜ਼, ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈੱਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਪਲੇਗ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਡੈਂਟਲ ਪਲੇਗ। ਡੈਂਟਲ ਪਲੇਗ ਸਾਡੇ ਕਵਰਸ ਕਰਦਾ ਟੀਥ ਨੂੰ। ਇਟਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ secrete the acid that cause dental caries. Saliva which normally neutralized acid and kills the bacteria unable to protect the teeth because of plague. ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੀਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੇਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਾਡੇ ਤੀਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਰਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਤੀਥ ਆਫਟਰ ਅ ਮੀਲ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਪਲੇਗ
सो ऑलवेज सानू जो खाना खाने तो बाद ब्रश करना चाहिए, मूँह साफ़ कर देना, अंदरों कर लेना चाहिए, ठीक है। ब्रश नहीं करना तो जोड़े अजकल बहुत सारे सल्यूशनस वगैरह चले हैं, लिस्टराइन सल्यूशन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਊਥ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਥਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਇਨ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ। ਫੂਡ ਇੱਕ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਕਰਸਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਇਨ ਬਕਲ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲਸ। ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਲਾਈਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੁੱਕ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲਸ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਟੈਂਡ ਇਟਸ ਰੋਲਡ ਇਨਟੂ ਸਮਾਲ ਬॉल ਔਰ ਬੋਲਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਛ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਈਜ਼ਲੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਓਸੋਫੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੈਰਨੈਕਸ। ਫੈਰਨੈਕਸ ਇੱਕ ਫਨਲ ਸ਼ੇਪਡ ਕਾਮਨ ਪੈਸੇਜ ਆ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਮਿਡਲ ਈਅਰ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇਜ਼ਲ ਚੈਂਬਰਸ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਐਲਵੀਓਲਾ ਗਲੋਟਿਸ ਔਰ opening of trachea is closed by raising of pharynx to come in contact with epiglottis, ठीक है। और soon the muscles of the pharynx contract to push the food into esophagus। act of pushing food in esophagus is swallowing। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ भाई, ये तुसी करनी है। act of the pushing food into the esophagus इज़ कार द swelling। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ swelling ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਡੀਗਲੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਊਥ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੂਡ, ਇੱਥੋਂ ਸਵੈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਐਕਟ ਆਫ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਇਨਟੂ ਓਸੋਫੇਗਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਗਲੂਟੇਸ਼ਨ। ਓਸੋਫੇਗਸ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਆ, ਨੈਰੋ ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ठीक है। और की करती है, इट पासिज थ्रू द नैक के थ्रू पास होती है। थोरेक्स डायफ्राम लैंथ 25 सेंटीमीटर। डायजनो ये कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होंगे। ये वॉल जी सकरीट एक म्यूकस सकरीट कर दी जी, ये वॉल है ना, आ देखो आ ओसोफेगस आ, अंडरस्टूड। ओसोफेगस ने क्या ना, ये जी वॉल्स होंगे ये म्यूकस सकरीट कर दी, ठीक है। हुण ये जी म्यूकस आ इन्हें हैल्प करना है फूड ਨੂੰ पास करने ਦੇ ਵਿੱਚ। एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज ओवर स्टार्च कंटिन्यूज इन ओसोफेगस। फूड इज़ पुश्ड टूवर्ड द स्टमक बाय द वेव ऑफ ऑल्टरेट कंट्रैक्शन एक्सपेंशन। इनू जी मूवमेंट होंदी है ये हौली हौली फूड अगे पिछे हौली हौली मूव करके जो जाता है, ठीक है, उन्होंने उसने पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। आ देखो ओसोफेगस आ एक बोलस बन जाता एक फूड का, ये हौली हौली अगे जाना, हौली हौली जिदा अर्थवॉर्म नहीं तुरता, तुम तुरता देखा होना, पहले उन्हें अपनी मोहली बॉडी खिंचनी फिर पिछली मोहली बॉडी, इदा ही इनू बोलते हैं। ये जी कॉन्ट्रैक्शन तो एक्सपेंशन जी होंगी है पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ठीक है। स्टमक जो थोड़ा जी शेप होंगे, वाइडेस्ट थिक वॉल्ड होंगी है, मस्कुलर ऑर्गन होंगे एलिमेंट्री कैनाल का। स्टमक लाइज इन लैफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन बिलो डायफ्राम। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे लाइक गैस्ट्रिक जूस सकरीट करता है, जी गैस्ट्रिक वॉल ऑफ द स्टमक अंडरगो पीरियोडिक कंट्रैक्शन। चांस द कंटेंट फूड ब्रेक इट्स इन स्मॉलर पीस एंड मिक्सड थॉरली विद गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के की प्रेजेंट होंगे, एसीएल होंगे, म्यूकस होंगे, पैप्सिन होंगे, गैस्ट्रिक लाइपेज होंगे, रैनिन होंगे। पैप्सिन द रैनिन इज सिक्रेटेड इन देयर इनएक्टिव स्टेट्स ऑफ पैप्सिनोजन एंड प्रोरैनिन। सो एसीएल हैज़ ए 5 फंक्शन। एसीएल के भी जो एसीएल सकरीट करता है साड़ी स्टमक की वॉल, आ देखो आ स्टमक आ, यदी जी वॉल्स है ये चीज़ा एसीएल जो सकरीट करती है, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर देता ये उन्होंने किल करने हैल्प करता है, अंडरस्टूड। और की करता है, सलाइवरी अमाइलेज के फंक्शन को स्टॉप करता है, बैक्टीरिया किल्स में मारता है। यह मेन फंक्शन एक तुम जरूर करने, दोनों ही करने इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के डायरैक्टली कई बार पुछ लेंगे पैप्सोजिन जो पैप्सिन एसीएल के किस कन्वर्ट करता, पैप्सिनोजन पैप्सिन जो, प्रोरैनिन रैनिन, ठीक है, अंडरस्टूड है। क्योंकि ये जो पैप्सिन तो रैनिन आ सकरीटेड इन देयर
ਇਨਐਕਟਿਵ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਪੈਪਸਿਨੋਜਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਰੈਨਿਨ, ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪੈਪਸਿਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਜਰ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਵਿਚ functions in the acidic medium. It develops, it hydrolyzes proteins into soluble fragment proteins. तो ठीक है, पैप्सिन का मेन फंक्शन की है, हम प्रोटीन को किच तोड़ना, पेप्टोन से प्रोटियोसिस। रैनिन का की है, उन्हें कैशियम किच तोड़ना, पैराकेशियम जोड़ा इनसॉल्यूबल होंदा। सो एंजाइम लाइपेस इज़ एक्टिव इन इन्फेंट्स। सब तो ज़्यादा गैस्ट्रिक लाइपेस किहदे विच सिक्रीट होंदा? बच्चों के जिहड़े न्यू बॉर्न बेबीज़ होंदे ना, इन्फेंट्स मैंने न्यू बॉर्न बेबी। So it partially breaks down fat into the components. Renin is also active only in infants. Renin भी बच्चों के ज़्यादा। It curdles the milk by converting soluble milk protein casein into soluble protein पैराकेशियम, ठीक है। और की करता मिल्क नूं किच कन्वर्ट करता है, जिहड़ा उस चों प्रोटीन होंदा ना कैशियन, उन्होंने पैराकेशियम दे विच कन्वर्ट करता है रेनिन, ठीक है। सो मिल्क से इन द स्टमक for longer for the pepsin to act in mucus, protect inner lining of stomach from HCl and pepsin and stomach the food stay for 1 to 6 hours। 1 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਾਡਾ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੂਰਿੰਗ this period it is changed into partially digestive pulpy mass chyme। so the pyloric wall guarded by opens into doubles allow chyme to pass into duodenum and small। ਇਦਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਟਮਕ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਫੂਡ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਸਿਕਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਫੂਡ ਨੂੰ ਚਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਜ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਫੂਡ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮੋਲਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਅਲਕੋਹਲ, ਡਰੱਗਸ, ਮਿਨਰਲਸ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸੇਜ ਇਨਟੂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਓਨਲੀ finely broken partial digestive food is allowed to pass in small into the pyloric wall, ठीक है। सो अगे नैक्सट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन देखो किहड़ी हुंदी आ, देखो हाँ, ये होंदी है लार्ज आ, ये लेंथ बहुत वड्डी हुंदी है, बट इनू स्मॉल कहंदे आ। और जिहड़ी लार्ज हुंदी है वो बहुत छोटी हुंदी है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिहड़ी हुंदी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट हुंदा एलीमेंट्री कैनाल का। ये भी पूछ सकते हैं किहड़ा लॉन्गेस्ट पार्ट आ तुहाडा एलीमेंट्री कैनाल। ये डिपेंड करती है ऑन फीडिंग हैबिट्स। लॉन्गर हर्बीवोरस जिहड़े हुंदे, जिहड़े प्लांट्स वगैरह खांदे आ, उन्हां विच लॉन्गर हुंदी है, ठीक है। साडे विच कार्निवोरस जिहड़े हुंदे आ उन्हां विच घट होंदी, जिहड़े इन ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ अबाउट 6 मीटर इन लेंथ, ठीक है। और डायमीटर 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर। कोइल्ड होंदी है, बहुत छोटी स्पेस विच प्रेजेंट होंदी है। मेजर डाइजेशन ये होंदी है, ठीक है। ये सब तो मेन बेटा ये याद रखना, ये जी वॉल होंगी ना इंटेस्टाइनल वॉल, इस थ्रोन अप न्यूमरस फोल्ड, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगी, उन्होंने बोलते हैं असीं विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन वैसे होंदा कि फूड नू अब्जॉर्व करना, ठीक है। और अब्जॉर्व किहदे करके होऊगा? इस विलाई करके। ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शनस ये प्रेजेंट होंगे। सो इन्हें की करना, इन्हें सरफेस एरिया बढ़ा देना अब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो आर मोस्टली प्रेजेंट बेस ऑफ विलाई। सम इंटेस्टाइन डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। 3 पार्ट्स के स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड की होंगी है, देखो ड्यूडेनम, ठीक है, जेजुनम एंड इलियम। बाकी 2 पार्ट जिहड़े इन्हें शो नहीं किए, ठीक है। रेस्ट ऑफ द 2 फॉर्म्स ने ये कानून शो नहीं किया, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये तुहानूं 3 पार्ट्स तुहानूं पता होने चाहिए, ठीक है। सो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट पोर्स बाइल फ्रॉम लिवर एंड गॉलब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास इनटू ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द। हुण आ देखो, हुण वो की कह रहा है, एक डक्ट होंदी आ हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। उस डक्ट ने की करना बच्चे, वो जी डक्ट होंगी इन्हों हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट करनी, उन्हें लीवर कोलों बाइल लैके आना, ठीक है। तो पैनक्रियास कितने आ, पैनक्रियास कोलों की लेना 2 चीज़ां आ, देखो पैनक्रियास कोलों पैनक्रियाटिक जूस लेना,
एक रस्ता आ हैपो पैनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। उन्हें बाइल किहदे कोल लैना, लीवर कोलों जां गाल ब्लैडर, ठीक है। एंड पैनक्रिएटिक जूस कितों लैना, पैनक्रियस। तो उन्होंने कित्थे रिलीज़ करना, ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इत्थे रिलीज़ करना। ये हुण समझ लग गई। सो दोनों कलैक्ट करके दोनों पिछों एक रस्ता बनता है, ठीक है। इधरों आती है लग, इधरों आती है, ये दोनों आके एक जी डिवाइड हो। सो पैनक्रिएटिक जूस मेजर डाइजैस्टिव जूस का बॉडी का अल्कलाइन होंदा थोड़ा जिहा, वो नेचर जी होंदी है, ठीक है। द जूस कंटेन 3 मेन एंजाइम। इस पैनक्रिएटिक जूस में 3 एंजाइम होंगे, ट्रिप्सिन, अमाइलेज ते लैक्टेज। ये तुहानूं तिन्नां दे फंक्शन पता होने चाहिए, ठीक है। सो ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन पेप्टोन्स टू फॉर्म पेप्टाइड्स। Pancreatic lipase is the main fat digesting enzyme. It acts on emulsified fat to form the fatty acids and glycerol. Pancreatic amylase act as starch, glycogen, dextrins and other complex carbohydrates. So ये ਜਿਹੜੇ अलग-अलग ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜੂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ट्रिप्सिन हो गया, अमाइलेज हो गया, लाइपस हो गया, ये अलग अलग चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। अमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोस में करना है, तुहानूं पता ही है। लाइपस ने फैट ਨੂੰ फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ट्रिप्सन ने प्रोटीन, पैप्टोन्स में पैप्टाइड्स के। सो अगे साडा आ जांदा लिवर। लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड आ, ये भी क्वेश्चन आंदा हुंदा। लार्जेस्ट ग्लैंड आ बॉडी का, ठीक है। सो लिवर लाइज इन द राइट अपर साइड ऑफ एब्डोमेन। इट सॉफ्ट होंदा, रेडिश ब्राउन इन कलर होंदा। 2 लोब्स होंदियां, लार्जर लाइट राइट लोब एंड द स्मॉलर लैफ्ट लोब। येलोइश ग्रीन कलर का होंदा, ठीक है। सो ये लीवर का हुण मेन फंक्शन की होंदा, इन्हें बाइल सक्रीट करना। बाइल इज़ सक्रीटेड बाय लिवर, ठीक है। सो होर वो फंक्शनस तुसीं कर लेने, 2-3 कोई भी कर सकते हैं, ईजी कर लियो। विटामिनस की स्टोरेज करता, ADE, B12, ब्लड की सिक्रीशन ऑफ ब्लड, एंटी कोगुलेंट हैपरिन। हैपरिन नूं सक्रीट करता जिहड़ा ब्लड नूं जम्मण नहीं दिंदा, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा प्रोटीन, फिब्रोन या प्रोथ्रोम्बिन। सो ये जिहड़े तुसीं कर लेने। एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस, फॉरन पार्टिकल्स थ्रू फाइगोसाइटिक सेल, कफा सेल जिहड़े हुंदे आ बाहर एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। नैक्सट पार्ट आ जांदा साडा बॉडी दे विच पैनक्रियाज आ जांदी है। पैनक्रियाज एक लार्जेस्ट ग्लैंड आ, सैकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। पहली लार्जेस्ट किहड़ी सीगी, लिवर। सैकेंड किहड़ी आ, पैनक्रियास। हिट्रोक्राइन इहनूं बोलते हैं। डिफ्यूज द ग्लैंड, ठीक है। पैनक्रियास secreted digestive fluid का पैनक्रिएटिक जूस। द secretion is major digestive juices of body as it enzymes are hydrolyzing all the types of food ingredient। ये विच ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, न्यूक्लियस, पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रियामाइलेज, ये सारिया चीज़ां प्रेजेंट होंदियां। 2 टाइप्स के हारमोन सक्रीट करता है, तुहानूं पता होना चाहिए, इंसुलिन ते ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन का हुण मेन जिहड़ा हुंदा, इंसुलिन इज़ एसेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय सैल्स। इन्हें की करना, ग्लाइकोजन विच कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकागॉन जो मेन फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। अंडरस्टूड है। ग्लूकोज में जोड़े ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता और ग्लूकागॉन की करता, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज से करता। रिवर्सिबल प्रोसैस है, ठीक है। ये डिफरेंसिस तुसीं पढ़ लियो। सो रिप्सिन ये सारे करने हैं बच्चे, जोड़े इंपॉर्टेंट फंक्शनस होंगे ना, ये तुसीं करने हैं। सो कि ये भी इंटेस्टाइनल कंप्लीट प्रोसैस ऑफ डाइजेशन करते हैं, एंजाइम्स होंगे आ, रिप्सिन, पेप्टाइडाइज, इन्वर्टेज, सुक्रेज, ठीक है। नैक्सट आ जाता तुहाडा डाइजेस्टिव फूड इज़ अब्जॉर्ब मोस्टली इन रीजन ऑफ विलाई। ये तुहानूं पता लग गया, विलाई किहड़ा पार्ट सीगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट सीगा SI, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट सी, जिहड़ा कि लार्ज सरफेस एरिया बता दिंदा सीगा इंटेस्टाइन का और हैल्प करता सीगा उहनूं काहदे विच कन्वर्ट करन, अब्जॉर्प्शन विच हैल्प करता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन तुहानूं पता ही है, डिस्टल जिहड़ा एलिमेंट्री कनाल आ, ठीक है। डायमीटर इहदा रिसीव्स ये भी लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट कंटेन, इहदे विच कोई ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होंदियां और ये फूड नूं अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और इन्हें मेन पार्ट अब्जॉर्ब इन्हें थोड़ा बहुत कर लेना, जो वेस्ट मटीरियल उन्होंने बाहर कर देना। 3 पार्ट होंगे ये, सीकम, क्लोन एंड रेक्टम। हाँ देखो, असेंडिंग क्लोन, डिसेंडिंग क्लोन तो ट्रांसवर्स क्लोन। आ सीकम पार्ट हो गया, आ क्लोन पार्ट हो गया, ठीक है।
और आ रैक्टम पार्ट हो गया, आ एनस हो गया, ये सारियां ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन का। सो सीकम एक स्मॉल पाउच होंगे, ब्लाइंड ट्यूब ਨੂੰ वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं अटैच टू इट। क्लोन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये तुहानूं पूछ सकते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट किहड़ा है बेटा? क्लोन। इनू कल्ले नूं पुछे क्लोन कहना। जे ये तिन्नां दे नाम पुछूगा, इन्हें 3 टाइप्स किहड़ियां? फिर असेंडिंग क्लोन, ट्रांसफर क्लोन एंड डिसेंडिंग क्लोन, ये 3 टाइप्स है इहदियां, ठीक है। और इन्हें वाटर में अब्जॉर्व करना, जिदा हुण जिहड़े साडी बॉडी ने मेन चीज़ां होनियां फूड दे अब्जॉर्व कर लैनियां। जिहड़ा अनडाइजैस्टेड फूड होना उहदे विचों इन्हें पानी नूं अब्जॉर्व कर लेना, तो जिहड़ा बाकी दा मटीरियल इन्हें किच कन्वर्ट कर देना साडा जिहड़ा वेस्ट मटीरियल हुंदा, ठीक है। सो रैक्टम जिहड़ा आ लार्जेस्ट लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन होंदा, आखिरी पार्ट होंदा है जिहड़ा कि एनएस राहीं ओह ओपन होंदा है। ईजैशन जिहड़ा वेस्ट मटीरियल होंदा साडा ईजैशन इजस्ट हो जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर न्यूट्रीशन, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग। बेटा ये तुसीं ये करना है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आ डायग्राम बनानी है और ये मेन पार्ट्स करने हैं तुसीं, ठीक है। एक बार देख लो, आ तीत का स्ट्रक्चर बनाना है, तुहानूं पता होना चाहिए किहड़े तीत है तुहाडे। आ टेबल बनाना है, एक इंपॉर्टेंट है जो काम दे रहा हूँ। देख लो की करना। एक तो तुसीं सारे पार्ट्स में एक्सप्लेन करना, बट उन्होंने मेन पार्ट्स लिखने हैं वो, ठीक है। जिदा एलीमेंटरी कनाल आ गई, ये माउथ बारे लिखो थोड़ा बहुत, टंग, तीत, ओके। फंक्शनस उन्होंने कर लेने। सलाइवरी ग्लैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा पार्ट है जिहड़ा, ठीक है। ये सारे एक्सप्लेन करना है, ये किहड़े एंजाइम होंदा, की सैक्रीट करता तुहानूं पता होना चाहिए। कल डेंटल केरीज की होंदा, किहड़ा बैक्टीरिया यूज़ होंदा, ये तुहानूं पता होना चाहिए। डेंटल प्ले की होंदा, ठीक है। सारे जो मैं दस रहा बेटा सारा कुछ इंपॉर्टेंट आ, सारा कुछ 1 मार्क्स कुछ भी आ सकता है पेपर एग्जाम च, और जो कह रहा वो पेपर गैस होंदा 100% पेपर आऊगा ये। आ फंक्शनस तुहानूं पता होने चाहिए, इन्हां दे नंबरिंग पता होनी चाहिए, साढ़े लोअर जाच अपर जाच किन्ने होंदे। सर्वाइली माइलेज सलाइवरी माइलेज इत्थे अपने कर लिया सीगा। ओसोफेगस करना, स्टमक दे विच किहड़े एसिकल दे फंक्शनस करने हैं सारे 5 फंक्शनस होंदे आ, इन्हां विचों 3-4 तुहानूं आने चाहिए और इन्हां दे कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिहड़ा लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट पार्ट होंदा एलीमेंटरी कनाल का, ये भी पूछ सकते किहड़ा पार्ट आ, उहदे फंक्शन किहड़े आ, तुहानूं फंक्शन पता होना चाहिए। कौन ऑब्जॉर्व करदा, की फंक्शन होंदा है, ठीक है। पैनक्रेटिक जूस किस लीवर की करता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होंदी है, सैकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ वाला, क्योंकि ये कल्ला क्वेश्चन बनता होंदा 3 मार्क्स का पैनक्रियास का। उन्हें कहना पैनक्रियास की होंदी है, जां उन्हें एक क्वेश्चन होंदा विच ग्लैंड इज़ हेट्रोक्राइन इन नेचर, विच ग्लैंड इज़ हेट्रोकाइन इन नेचर, वो किहड़ी होंदी है? पैनक्रियास। फिर असीं उन्हां बारे एक्सप्लेन करना। 2 हारमोन सक्रीट करता है, इंसुलिन तो ग्लूकागॉन। इंसुलिन जिहड़े होंदे आ वो बीटा सैल्स करते हैं प्रोड्यूस, तो वो अल्फा सैल्स करते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है। सो ये तुहाडा सारा कुछ हो गया कंप्लीट। तुसीं सारे इनू एक्सप्लेन करना है तो कॉपी ते बनाउणा है, ठीक है। आ विलस का स्ट्रक्चर है, ये भी जरूर बनाना। जिथे स्मॉल इंटेस्टाइन बारे लिखना उत्थे ये बनाना है तुसीं, ठीक है। सो बेटा थैंक यू।